Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Shima Datta. In this video, I am going to explain Karl Marx's theory of materialistic interpretation of history. So let's start. Marx on materialistic interpretation of history. मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद. The doctrine of historical materialism or materialistic interpretation of history is the application of dialectical materialism to the study of social development. मार्क्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद बीते हुए समाजों की भौतिकवाद के आधार पर एक्सप्लेन करना. मार्क्स के हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म सामाजिक विकास के अध्ययन पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग है. His theory of historical materialism is historical because he has traced the evolution of human societies from one stage to another. उनके भौतिकवाद को ऐतिहासिक कहा जाता है कारण उसने यह पता लगाया कि मानव समाज का विकास एक स्टेज से दूसरा स्टेज तक कैसे होता है. And it is called materialistic because Marx has interpreted the evolution of societies in terms of their material or economic basis. मार्क्स के हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म को मटेरियलिस्टिक कहा जाता है कारण उसने समाज का विकास या उत्पत्ति पदार्थ या आर्थिक आधार पर होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया. Marx's theory of historical materialism states that all objects, whether living or inanimate, are subject to continuous change. The rate of this change is determined by the laws of dialectics. Marx says that new developments of productive forces of society came in conflict with existing relations of production. मार्क्स हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म के अनुसार कई सारे पदार्थ लिविंग हो या लाइफलेस हो सबका कंटिन्यूअस चेंज होना ही है. इस परिवर्तन की दर निर्धारित होता है द्वंद्वात्मक विधि के द्वारा. मार्क्स के अनुसार जब उत्पादन के संबंध में चेंज आता है तो लोगों के आपसी संबंध में चेंज आता है. तब संपूर्ण उत्पादन या प्रोडक्शन में चेंज आ जाता है और पूरे आर्थिक व्यवस्था में चेंज आता है और फाइनली पूरे समाज में चेंज आ जाता है. मार्क्स एंड एंगल्स हैव रिजेक्टेड रूट and branch of Hegelian concept of spirit or idea and have meticulously analyzed the society exclusively from the materialistic point of view. Marx and Engels ने Hegelian concept of spirit और idea को रिजेक्ट करके अति सावधानी से समाज को materialistic point of view से एनालाइज या विश्लेषण किया. Marx says that in society there are two stages. One is base or foundation and the other is superstructure. If there is a change in the base or foundation of society, there will take place a corresponding change in the superstructure. Marx discovered this relationship from the analytical study of society with an outlook of materialism. मार्क्स ने कहा समाज में दो स्टेजेस है. एक है बेस यानी कि आधार और फाउंडेशन यानी कि बुनियाद और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर यानी कि अधिरचना. यदि सोसाइटी का बेस या फाउंडेशन में चेंज आया तब सुपर स्ट्रक्चर में भी अनुरूप चेंज आएगा. मार्क्स ने इस रिलेशनशिप को डिस्कवर किया था भौतिकवाद के दृष्टिकोण सहित समाज के विश्लेषणात्मक अध्ययन से. According to Marx, in every society which has appeared in history, the distribution of wealth and the division of society into classes
is dependent upon what is produced, how it is produced, and how the products are exchanged. The ultimate causes of all social changes and political revolutions are to be sought not in men's brains, not in their growing insight into eternal truth and justice, but in changes in the modes of production and exchange. मार्क्स के अनुसार हर एक समाज में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड द डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस निर्भर करता है upon what is produced, how it is produced and how the products are exchanged, यानी कि क्या उत्पादन हुआ, कैसे हुआ और कैसे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज या विनिमय हुआ। हर प्रकार की सोशल चेंजेस एंड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस का अंतिम कारण तलाश किया जाता है मेंस ब्रेन के द्वारा नहीं, उनकी अविनाशी ट्रूथ एंड जस्टिस में बढ़ती अंतर्दृष्टि में नहीं, बल्कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज की परिवर्तन पर। While interpreting the development of Western society, Marx pointed out 5 specific modes of production and 5 different kinds of societies, namely primitive communist society, slave-owning society, feudal society, capitalist society and socialist society. वेस्टर्न सोसाइटी के विकास के बारे में जब इंटरप्रेट किया तब मार्क्स ने 5 स्पेसिफिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के विशिष्ट तरीके और 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ पॉइंट आउट किया। वो है प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी, आदिम साम्यवादी समाज, स्लेव ओइंग सोसाइटी, गुलाम समाज, फ्यूडल सोसाइटी, सामंत समाज, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज। According to Marx, classes are determined by the mode of production and struggle between the classes with opposite interests in fundamental. To quote Marx, the history of all hitherto existing society is the history of class struggle. Changes cannot be brought about by reconciling class interests. The interests of antagonistic classes cannot be reconciled through cooperation and harmony of interest. मार्क्स के अनुसार वर्ग या श्रेणी निश्चित किया जाता है प्रोडक्शन विधि द्वारा और वर्गों के बीच अपोजिट इंटरेस्ट के विरुद्ध संघर्ष के द्वारा। एक उदाहरण में मार्क्स ने कहा था, अब तक जितना एग्जिस्टिंग सोसाइटी का इतिहास है वो है श्रेणी संघर्ष का इतिहास। क्लास इंटरेस्ट के मेल मिलाप के द्वारा चेंजेस नहीं ला सकता। कोऑपरेशन एंड हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट्स के माध्यम से विरोधी श्रेणी के इंटरेस्ट्स का मेल मिलाप नहीं कराया जा सकता है। द क्लासेस which are dominant are interested in maintaining the status quo and classes which are oppressed work for change. Change is always sought by the oppressed and exploited class. It is always opposed by the class whose interest is served by the maintenance of the social system. Class struggle is the driving force for social and historical change. When the dominant is defeated and a new class takes over, it is revolutionary change. जो क्लासेस प्रबल या प्रभावी है वो यथास्थिति मेंटेनिंग में इंटरेस्टेड होता है और जो पीड़ित है वो चेंज या परिवर्तन के लिए काम करता है। चेंज यानी कि परिवर्तन पीड़ित और शोषित श्रेणी के द्वारा ही मांगा जाता है। यह उस क्लास के द्वारा विरोध किया जाता है जिसके इंटरेस्ट
समाज व्यवस्था मेंटेनेंस के द्वारा सर्व किया जाता है। सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए क्लास स्ट्रगल एक ड्राइविंग फोर्स यानी कि संचालक शक्ति है। जब डोमिनेंट क्लास को पराजित किया जाता है तब एक न्यू क्लास सोसाइटी में इमर्ज हो जाती है और इसे ही रिवोल्यूशनरी चेंज यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है। When the contradiction between the relations of production and forces of production reaches a climax, revolution occurs, and there is the transformation of one mode of production into another. जब उत्पादन का संबंध और उत्पादन शक्ति के बीच विरुद्ध चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब रिवॉल्यूशन होती है और तब ही उत्पादन के तरीका यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, there is always a conflict between the present state of affairs and what is coming. Society contains within itself the seeds of its own destruction and transformation to higher stage. मार्क्स के अनुसार प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स और आने वाले अफेयर्स के बीच हमेशा विवाद होती है। समाज में ही अपना डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का बीज शामिल है। Marxism is not historical fatalism. It does not believe that change will come automatically. Revolutionary action is fundamental to the Marxian theory of change. Marx believed that the future depends on ourselves. Marxism ऐतिहासिक भाग्यवाद नहीं है, अर्थात भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत नहीं है। मार्क्सिज्म यह बिलीव नहीं करता कि चेंज ऑटोमेटिकली आता है। इसके लिए रिवॉल्यूशनल एक्शन क्रांतिकारी कार्य मौलिक है। मार्क्स का विश्वास है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवरसेल्व्स नॉट इन फैटलिज्म। क्रिटिसिज्म्स Marx's theory of materialistic interpretation of history is not free from criticisms. Number one, the first objection is that his view is not more than a mere theory without any proofs. His theory of historical materialism does not fulfill the conditions of any of the above mentioned methods. Marx's view बिना किसी सबूत से एकमात्र सिद्धांत से अधिक नहीं, उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद में ऊपर बताए गए तरीके के शर्तों को पूरा नहीं करता है। नंबर टू, मार्क्स इन सम ऑफ हिज स्टेटमेंट्स considers all social processes, essential or non-essential, as based upon economic factors and has not suggested the effect of superstructure on the infrastructure as referred to earlier. मार्क्स का मानना है कि all social processes, सभी सामाजिक प्रक्रियाएं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आधारित है और बुनियादी ढांचे पर अधिरचना का प्रभाव के बारे में जो पहले उल्लेख किया गया है उसके बारे में कुछ सजेशन नहीं दिया। Number three, Marx's interpretation of historical materialism reaches a point that one finds this theory and its emphasis on the economic base, and as a consequence, the so-called scientific socialism, whose base is historical materialism, reduced to mere play of words and nothing else. Marx के इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्रिकल मेटेरियलिज्म एक बिंदु तक पहुंचता है कि कोई इस सिद्धांत को और इसका जोर आर्थिक आधार पर पाता है और फलस्वरूप सो कॉल्ड यानी कि तथाकथित साइंटिफिक सोशलिज्म जिसके आधार हिस्ट्रिकल मेटेरियलिज्म है केवल खेल को कम कर दिया और कुछ नहीं। Therefore, Marx's materialistic conception of history is not satisfactory because all events of social history cannot be interpreted in terms of economics alone. The force of
economic factors like religion, culture, philosophy, language, nationalism, and the like cannot be thoroughly ignored. So, his theory of historical materialism is lopsided to explain all the facts of experience. मार्क्स मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री संतोषजनक नहीं है, कारण सोशियल हिस्ट्री के सभी कार्यक्रम केवल इकोनॉमिक टर्म्स यानी कि आर्थिक शर्त पर इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के शक्ति जैसे कि रिलीजियन, कल्चर, फिलोसफी, लैंग्वेज, नेशनलिज्म एट्सेट्रा पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनके थियोरी ऑफ हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म के अनुभव के सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने में लॉपसाइडेड यानी कि एक तरफा है। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म देयर इज ऑलवेज ए सॉर्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सुपरस्ट्रक्चर एंड बेस इन सोसाइटीज। When the base is changed, the correspondence between the base and superstructure is affected, disturbing the social equilibrium and giving rise to crisis followed sooner or later by a necessary deterioration of the superstructure. And if the base remains in its original state, the superstructure also necessarily remains unchanged. हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म के अनुसार समाज में सुपरस्ट्रक्चर एंड बेस अधिरचना या आधार के बीच एक प्रकार के कनेक्शन है। जब बेस चेंज होता है तब सामाजिक संतुलन डिस्टर्ब होता है और बेस और सुपरस्ट्रक्चर के कनेक्शन भी अफेक्टेड होता है और अंत में अधिरचना या सुपरस्ट्रक्चर के बिगड़ने से समाज में संकट पैदा होता है और यदि बेस इसके ओरिजिनल स्टेट पर टिका रहता है तब सुपरस्ट्रक्चर अनचेंज्ड रहता है। नंबर 6, मार्क्स वाज क्वाइट राइट इन ड्राइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर which had been seriously neglected, but he gave it an undue prominence and thus oversimplified the complexity of the social situation. मार्क्स इकोनॉमिक फैक्टर के इम्पोर्टेंस के प्रति ध्यान खींच के बिल्कुल सही था, जिसे सीरियसली नेग्लेक्ट किया गया, परंतु उसने इसे अनुचित प्राधान्य दिया और इसी तरह सामाजिक अवस्था के जटिलता को ओवर सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकृत किया। In spite of having many criticisms, Marx's historical materialism teaches us that the material conditions of the mode of production determines its organization and more importantly its development, that is, how goods are made influences society and how society changes over time. कोई आलोचनाओं के बावजूद भी मार्क्स के हिस्ट्रिकल मटेरियलिज्म हमें यही सिखाता है कि उत्पादन के तरीका के सामग्रिक स्थिति ही इसके संगठन और विकास को निश्चित करता है। दैट इज, सामग्री कैसे बनाया जाता है समाज को प्रभावित करता है और कैसे समाज अधिक समय तक परिवर्तन होता है। Dear friends, if my videos are helping you, please support my channel with a subscription and a like and share.